नमस्कार। संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इस कानून में बलात्कार के मामलों की जांच की अवधि के साथ ट्रायल की समय सीमा भी तय कर दी गई है। पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 3 कानूनों में संशोधन किया गया। साथ ही 12 साल से कम आयु की बच्ची से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं विधेयक पर सदन में हुई चर्चा का आखिरी अंश। The death penalty provisions, I have a fear, might endanger victim girl's life because the rapist might want to destroy the evidence. If the punishment for murder and rape is one and the same, that's my fear. I don't know. I mean, the collective wisdom of the House shall actually deal with it. So isn't it a matter of collective shame for all of us that rape victims are not given a fresh piece of cloth when their clothes are collected as evidence? I think it's a collective matter of collective shame for us. I also remember, sir, a rape kit was promised long ago, and it had, the whole generation which came on road in the name of Nirbhaya, now they feel that they have been deceived. They feel very disappointed, sir. Sri KTS Tulsi. Sir, I'm not opposed to enhancing punishment, but I believe that simply enhancing punishment does not solve any problem. Criminal justice machinery is in shambles, and if we don't think of streamlining criminal justice, this will be another law which will become a paper tiger. And for that, merely prescribing the time limit in law has never proved to be sufficient. Unless we provide tools of technology, justice will continue to move at a bullock cart speed. And if it moves at bullock cart speed, there is no way we are going to be able to control crime or reduce crime. I submit that there are various aspects of this law which have not been taken into account. We need to have very effective witness protection program. Without that, courts will not be able to streamline justice. We also need every police station in the country to be provided with mobile forensic vans which will accompany the homicide team to the spot and where scientifically all the evidence will be collected, because it's only by reducing the dependence on oral evidence that criminal justice can actually be done. We need special courts where the girls are protected in the sense that they can make a deposition in court without being confronted with the perpetrator of the crime. We also need protection homes. So unless there is a comprehensive plan drawn up, I don't see that there will be any concrete change in the ground reality. And for that, I submit that it will be for the good of the country if we refer it to a select committee. Thank you. Any Agnik? Sir, I think it should be referred to a select committee for several reasons. We need some very comprehensive submissions to be made in this, because the time limit is prescribed for an appeal after the sentence is declared. But there is no time limit for the trial. If the trial goes on for several years, what is the sense of having an appeal within 6 months? And then you go to the Supreme Court. So the multiplicity of appeals has not been dealt with here. That is one part. Shortening the time of investigation, but the investigation is done by the same officer who even investigates into economic offenses. The sensitivity part is not discussed anywhere. I think that angle should be brought into this. And that also is coupled with the fact that when the investigation is not over in 2 months, 60 days, there's a default bail, and the accused goes scot-free, many of them. So that is the second part. The third part is, sir, that what happens to the victim in the POCSO, there are elaborate provisions that these small girls
have to be kept away from the perpetrators when they're brought to court. They have to be rehabilitated. They have to be counseled by psychologists and by people who can protect them, give them some assurances. Nothing is being done. And most apart from this, the witness protection, that they are afraid of coming and deposing in the courts before the trial courts. These two aspects have to be dealt with very severely, in a very comprehensive way, and in detail. And the last aspect, sir, that what happens when the courts are not there. There's piling up of POCSO cases as far from the state I come, and the court is not there. So these children are always brought in a huddle. They're put into the shelter homes. They don't know their fate. They don't even have come out from the trauma they have undergone. So what are these aspects? How are we going to deal with it just by bringing an amendment of bringing harsher punishment? So this should be referred to a select committee, sir. Shri Veer Singh. महोदय, जो आज नाबालिग बच्चों के साथ जो यौन शोषण की घटनाएं बढ़ी हैं देश में, ये एक बहुत ही सोचने वाला विषय है। आज जो सख्त कानून बनाए गए हैं, कानून तो पहले भी सख्त था, किंतु उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जैसे कि निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद सदन में चर्चा हुई, कानून बना, किंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए ये अपराध बढ़ रहे हैं। आज जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा केस लंबित हैं इस तरीके के, क्योंकि न्यायालयों की कमी है और न्यायालयों में जजों की कमी है, इसलिए लाखों केस आज इस तरीके के पेंडिंग हैं। हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, और जब इस तरीके के अपराध होते हैं और उसमें जो विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं, उनको गवाही देने से रोका जाता है, उनका संरक्षण नहीं किया जाता है, इससे भी अपराधी का मनोबल बढ़ता है। तो उस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कहकशन प्रवीण। ये बिल का मैं समर्थन करती हूँ, वो इसलिए कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो यौन शोषण का शिकार होती हैं, उनके रक्षा के लिए ये बिल पेश किया गया है। जब किसी बच्ची के साथ कोई घटना घटती है तो उसके दिल में जो जख्म बनते हैं या उसके माता पिता के दिल में जो चोट लगती है, वो जिंदगी भर नहीं भुलाई जा सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि हम कानून बनाएं, लेकिन साथ ही साथ हम सोशल अवेयरनेस का भी हम काम करें। जिसके साथ जब घटना घटती है तो वो जिंदगी भर वो उस घटना को याद रखते हैं, उसके माता पिता भी याद रखते हैं, लेकिन समाज के मुख्य धारा से वो बच्ची या बच्चे जो हैं कभी जुट नहीं पाते हैं। समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सबों को पहल करनी होगी, और जब तक हम सभी मिलकर कोशिश नहीं करेंगे, समाज जागेगा नहीं। तब तक इस तरह के जो यौन शोषण के मामले चाहे लड़कियों के साथ हो रहे हैं, लड़कों के साथ हो रहे हैं, इस पे कभी हम काबू नहीं पा सकते। So I have already submitted that on the one side we had the Indian Penal Code earlier. Later, noticing that there are several violence cases against children, the legislature came out with a special provision, special legislation under POCSO, which is meant only for children. So in this case, we see that all the amendments that we seek to make, most of the amendments which we seek to make under the Indian Penal Code are rape on women below the age of 12, rape on women below the age of 16 years. So, sir, I feel that instead of bringing an amendment in the Indian Penal Code, these amendments should have been under the POCSO, because law, sir, has to have clarity. And if we want to see any provisions concerning children, it should have been under one law. Unfortunately, now the lawyers or the people who want to defend or fight or prosecute will have to see two laws, which was really not required. That is my submission. Second point, sir, as some of my colleagues have already said, the provisions have mentioned the word woman. Yes, it is true that under the IPC, under section 10, a woman has been referred to a female human being of any age. But, sir, in common parlance, we see that a woman is an adult female.
And therefore, in those days, probably when the Indian Penal Code, there were not so many offenses against children. Now with changed times, with changed number of offenses happening against the children, number of legislations that we are doing for children, sir, I feel that the term woman should be deleted, because we cannot say when a 2-year-old or a 6-year-old child is raped, will we ever say that a woman has been raped? I think a child has been raped will bring more consciousness and sensitivity amongst the people and the legislators, more than saying a 6-year-old woman has been raped. The bill has already defined life imprisonment to mean the remainder of that person's natural life, meaning that there is no chance of releasing the accused early or on good behavior, which is normally done under life imprisonment. Why, sir, then should we slap a death sentence on such a person? Sir, the bill accounts for the rape of women, girls aged less than 12 years and less than 16. However, the definition of rape should be made gender neutral. Even the Law Commission of India, 2000, and the Justice Verma Committee, 2013, had recommended provisions regarding rape be applied equally to both male and female victims. The bill, however, does not take this approach. Sir, the purpose of a policy intervention should be to address the concerns of all, irrespective of gender. In this regard, the law is not inclusive. While the concern of the bill to address safety of girl child can be understood, this does not justify the bill leaving out protection of males and transgenders from rape. Shri Hussain Darwai. बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो जस्टिस वर्मा कमेटी जो स्थापन की गई थी, उन्होंने डेथ पेनल्टी देना गैर है ऐसा कहा है। ऐसा 94 केसेस जो रिवील होते हैं, उसमें क्राइम कमिट करने वाले जो ये विक्टिम रहते हैं, विक्टिम के नज़दीक के लोग रहते हैं। बहुत दफ़ा परिवार के लोग, बाप भी रहता है, चचा भी रहता है, उसके और रिश्तेदार रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं। ये सब केसेस है वो रिपोर्ट ही होते नहीं, क्योंकि वो नज़दीक के लोग होते हैं, इसलिए वो बच्चे के ऊपर या बेटी के ऊपर बड़ा प्रेशर लाया जाता है और ये नहीं होता। आप डेथ पेनल्टी देंगे तो मेरे ख्याल से ये केसेस ही रिपोर्ट नहीं होंगी और उसका रेट भी बहुत कम है, कन्विक्शन रेट। अभी डेथ पेनल्टी देंगे तो मेरे ख्याल से कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, लेकिन रिपोर्टिंग बहुत कम होगा। ये भी हमने ध्यान में लेना चाहिए। Just 2 minutes. Thank you very much, sir. Sir, one more stringent act has come before us. We have this POCSO now, then Nirbhaya, now one more is coming to us. But we failed to address the real issues, sir. So the real issues, the values of a patriarchal society. Its values are not good for a woman or for a child or for the oppressed. And now it has become more aggressive, sir. Its ideology has become more aggressive to everybody in society now. Sir, all the human values are now overtaken by the market values. In markets, love, affection, family concepts are all thrown to the winds. So nobody is safe in their homes even. Sir, the records are very clear. In 94.6% of the cases, who are the culprits? The victims are tortured by their close relatives, the men known to them. All those figures were mentioned here. I won't want to repeat it now. So this is the real issue. So with a major statement of death penalty, we are not going to solve the issues here. We want something more objective, more practical. So the necessity is that this bill needs to be more studies and more careful observation over that. So I request the House to refer this bill to a select committee. Sir, the victims, once it happens, 26% of them are dropped out from their schools. 50% of them and their families are forced to move away from their villages, and they have become almost like a refugee somewhere else. So the social impact, psychological impact, the human impact, that has to be taken with all seriousness. So only for a propaganda leverage,
such a bill cannot be Thank you, taken. नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पर राज्यसभा में गहन चर्चा चली। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संसद संवाद। देश में सर कुछ घटनाएं ऐसे हुई जो छोटे छोटे बच्ची हैं, 5 साल से छोटा, 2 साल से छोटा, और टोटली जो हम लोगों ने डिफाइन किया 16 साल से नीचे और 12 साल से नीचे, इस तरह का जो घटनाएं हुए हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये समझा कि ऐसे जो मामला जो सामने में आ रहा है, देश में आवाज़ उठ रहा है, हर समाज के तत्व के ओर से ये आवाज़ उठ रहा है कि इसमें कानूनी प्रावधान बहुत सख्ती से इसमें लाना चाहिए, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया और उसको सर आज इस सदन में बिल के रूप में पेश किया जा रहा है। Tales that inspire. Stories of social change. A salute to diversity. Promoting public discourse. Events that motivate. Inspiring the innovative spirit. Watch Rajya Sabha television documentaries. नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 राज्यसभा में पारित कर दिया गया। इस कानून में बलात्कार मामले की जांच की अवधि के साथ ट्रायल की समय सीमा भी तय कर दी गई है। पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए 3 कानूनों में संशोधन किया गया। साथ ही 12 साल से कम आयु की बच्ची से बलात्कार या सामूहिक बलात्कार के मामले में मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया है। Honorable Chairman, sir, this is a very extremely important subject. This is not a political issue, but this is a national issue concerning our society, the moral of the society. So cutting across the party lines, we all have converged together in talking about these important issues and coming together to pass this important bill. Sir, rape traditionally had been focused on women. And Indian Penal Code has specifically dealt with the term woman. That is why we have brought this particular amendment with the same word as woman. As per this section 10 of the IPC, the word woman denotes a female human being of any age. So flowing from that definition, we have come to this particular term in this particular amendment. But I can assure the August House that since it's been a long time we had this IPC, definitely there will be a discussion in the government and we will give a look and thinking about how this definition must be brought in the Indian Penal Code. Sir, with regards to the question on why only women, इसमें सर ये कहा गया कि जो मेल बच्चे होते हैं उनके साथ भी इस तरह का घटनाएं होते हैं, तो इसके लिए मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार में जो हमारे ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से एक कैबिनेट नोट तैयारी चल रहे हैं, जिसमें आप सबको पता है कि जो पॉक्सो है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, दैट इज ए जेंडर न्यूट्रल लॉ। और उस पॉक्सो में एक एग्जॉस्टिव टोटल एक उसमें रीलुक दिया जा रहा है, जिसमें जो डिटेल आपने जो मैटर यहाँ रेज किया है उसका समाधान कर सकता है। आज का जो विषय है, क्योंकि देश में सर कुछ घटनाएं ऐसे हुई जो छोटे छोटे बच्ची हैं, 5 साल से छोटा, 2 साल से छोटा, और टोटली जो हम लोगों ने डिफाइन किया 16 साल से नीचे और 12 साल से नीचे, इस तरह का जो घटनाएं हुए हैं उसको देखते हुए सरकार ने ये समझा कि ऐसे जो मामला जो सामने में आ रहा है, देश में आवाज़ उठ रहा है, हर समाज के तत्व के ओर से ये आवाज़ उठ रहा है कि इसमें
कानूनी प्रावधान बहुत सख्ती से इसमें लाना चाहिए। इसलिए पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा था तो एक ऑर्डिनेंस के फॉर्म में इसको लाना जरूरी था, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया और उसको सर आज इस सदन में बिल के रूप में पेश किया जा रहा है। और सर जो विक्टिम प्रोटेक्शन का बारे में जो यहाँ रेस किया गया है, मैं बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्रालय के माध्यम से जो विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन के लिए एक स्कीम चलाया जा रहा है और सारा राज्य सरकारों को निर्देश भी दिया गया है कि ये जो स्कीम है इसको सही तरीके से चलाया जाए। और हमने डिटेल से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी क्या क्या विक्टिम्स और विटनेस का प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दिया गया है। सर जो जनरल प्रोविजन है जिसमें जब रेप होता है तो उसके साथ क्या सजा का प्रावधान है, सबसे पहले तो सर आईपीसी 176 में जो पनिशमेंट का प्रोविजन है पहले 7 साल होते थे, अब उसको 10 साल किया गया है, 376 आईपीसी। सर उसके बाद जो 16 साल से जो नीचे है उसके खिलाफ अगर बलात्कार होता है तो उसके लिए सजा पहले 10 साल हुआ करता था, अब उसको मिनिमम 20 साल किया गया है और वो रिमाइंडर ऑफ द लाइफ जेल वहाँ पे रहने का प्रावधान है। 12 साल से जो छोटे हैं बच्चियों के साथ अगर ये रेप होता है तो उसके लिए 20 साल, पहले 10 साल था, अब न्यूनतम 20 साल से रिगरस इम्प्रिजनमेंट और डेथ, इसका नया प्रावधान रखा गया है। सर गैंग रेप में रिमाइंडर ऑफ द लाइफ या डेथ, ये दो उसको प्रावधान रखा गया है। सीआरपीसी के माध्यम में सर पहले 3 महीने के अंदर में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ता था सेक्शन 173 सीआरपीसी में, अब इसको इस नए प्रावधान में 2 महीने कर दिया गया है। उसके साथ पहले जो इसको ट्रायल चलते थे रेप का, उसमें सिर्फ ये कहता था कि एज फार एज पॉसिबल विद इन 2 मंथ्स, अब इसको हमने मैंडेटरी 2 महीने के अंदर में ये सारा जो आपका इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो ट्रायल जो है वो खत्म होना चाहिए, ये ट्रायल का भी डेडलाइन फिक्स किया गया है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ कहा गया है कि उसका कोर्ट में बहुत लंबा चलता है, इसके लिए सर 6 महीने के अंदर में इस अपील का जो प्रावधान है उसको भी कंप्लीट किया जाना चाहिए। ये मैं मानता हूँ सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सरकार ने कदम उठाया है। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पहले एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान होता था, अब इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल का कोई संभावना नहीं है। उसके बाद सर जब किसी अपराधी जिसको जो एक्यूज किया गया है वो जो है बेल एप्लीकेशन जब मूव करता है तो पता नहीं चलता था विक्टिम्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव को, अब उसको नोटिस 15 दिन के अंदर में जब वो ये एप्लीकेशन देता है 15 दिन के अंदर में बताना जरूरी है, और साथ साथ जब उसका हियरिंग होता है कोर्ट में तो उसका रिप्रेजेंटेटिव के मौजूदगी में इसका हियरिंग होने का आवश्यकता है। ये मैंने सर आईपीसी और सीआरपीसी का जो कुछ प्रावधान बताया उसका सर कॉन्सिक्वेंशियल जो इफेक्ट है इसमें आप देखिए सर सरकार ने कितना सख्त कदम उठाया है। इसमें सर महिलाओं को हम लोग इसका कैरेक्टर के बारे में काफ़ी जिक्र होता है मीडिया में भी समाज में भी। सर इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत अब ये कहा गया है कि महिला का जो कैरेक्टर के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उसके सर सेक्शन 26 सीआरपीसी में अब ये कहा गया है कि जो उसका जो ट्रायल होगा सर एज फार एज पॉसिबल इट शुड बी बाय ए वुमेन जज, महिला एज फार एज पॉसिबल, इसको हम लोगों ने नया प्रावधान डाला गया है। इसके अलावा सर जो कंप्लेन होगा जब उसका मामला जब पुलिस के पास आएगा वो कंप्लेन रिकॉर्ड भी एक महिला पुलिस अधिकारी ही ये रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ये प्रावधान नया डाला गया है। इसके अलावा सर जो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग भी महिला ही करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी रिकॉर्डेड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट as soon as the commission of offense has been brought to the notice of the police. So इस तरह का जो महिला विक्टिम सेंसिटिव मेजर्स जो हम लोग ने उठाया है यहाँ पे इस
नया प्रावधान जो रखा है, मैं मानता हूं कि इसका बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। और सर, पब्लिक सर्वेंट के बारे में कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट जो पुलिस ऑफिसर है या अधिकारी है, उनके ओर से अगर इस तरह का कुछ घटनाएं होते हैं उसका क्या होगा, तो उसके लिए कोई प्रीवियस सैंक्शन का कोई इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और सर, जो उसका इंक्वायरी होगा और जो सारा उसका कंडक्ट जो भी किया जाएगा वो इन कैमरा किया जाएगा सर, ताकि कोई उसमें छेड़छाड़ ना कर सके और उसका प्राइवेसी का भी हम लोग उसको भी ध्यान में रखते हुए। और सर, जो एग्जिस्टिंग सेक्शन 357B है CRPC में, उसको सर हमने ये कहा गया, अब this amendment will ensure that the compensation scheme will be extended to the victims of the newly proposed categories। जो नया सर सेक्शन 376AB, सेक्शन 376DA और सेक्शन 376DB में जो भी हम लोगों ने प्रोविजन रखा गया है, उसको सारा को कंपेंसेशन का जो स्कीम है उसको मिलेगा। और सर 376C CRPC में यह कहा गया कि ऑल हॉस्पिटल्स, पब्लिक और प्राइवेट shall immediately provide first aid or medical treatment free of cost to the victim of the offense of rape and shall immediately inform the police. Through this amendment, the facility of free first aid or medical treatment shall be extended to the victims under the newly proposed category. सर, मैं और भी महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि जैसे माननीय सदस्यों ने इस बात को जिक्र किया है, सिर्फ कानून के प्रावधानों में बदलने से पूरा सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। देश भर में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट गठन करने के लिए एक सेंट्रली फंडेड स्कीम का प्रपोज को लॉन्च कर दिया गया है और इसको जहां जहां कोर्ट नहीं बना वहां बनेगा और जहां बना हुआ है उसको और मजबूती से क्या करना चाहिए इसका प्रावधान रखा गया है। और इस मामले में राज्य सरकारों से भी और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद सर, प्रोसिक्यूशन का जो मशीनरी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सर जितने भी जो हमारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स जो बनाया गया है, उसमें जो पोस्ट सैंक्शन करना था पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए, ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और सपोर्टिंग मैन पावर के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसके लिए भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए सर जो रेट ऑफ कन्विक्शन जो होते हैं वो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे निर्भर करता है। इसके लिए सर adequate provisions of special forensic kits for rape cases are proposed to be made in all the police stations as well as hospitals where such medical legal cases are handled to improve the quality of forensic evidence and thereby strengthen the case of prosecution. Dedicated and trained manpower are to be provided for investigation of sexual offences in time-bound manner. और सर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के बारे में जैसे मैंने बताया, उसके लिए पूरा हर राज्य में फॉरेंसिक लेबोरेटरीज होना चाहिए, इसके लिए कदम उठाया जा चुका है। उसके बाद पिछले साल गृह मंत्री जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश में पहली बार जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम का जो लॉन्च किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डेटाबेस का ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसलिए इस देश में हिंदुस्तान के अंदर कोई सेक्सुअल ऑफेंडर जिसका प्रीवियस कैरेक्टर अगर ऐसा है, उसके लिए हर पुलिस स्टेशन के साथ साथ पूरा हमारा NCRB के साथ कैसे नेटवर्किंग रखे, डाटाबेस कलेक्शन हमारे पास अगर होगा तो हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि कौन आदमी ऐसा क्राइम किया है और संभावना कौन कर सकते हैं। इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है। सर इसके अलावा हमारे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा कदम उठाया, मैं सर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ। अब गृह मंत्रालय में जो डिवीजन, एक क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक स्पेशल डिवीजन क्रिएट किया गया है जो महिलाओं के लिए वो डेडिकेटेड रहेगा। उसका नाम है वुमेन सेफ्टी डिवीजन और पूरे महिला संबंधित जो भी चीज़ है उसको अलग से एक जॉइंट सेक्रेटरी स्पेशल वहाँ डेडिकेटेड उसको अपॉइंट करके अलग डिवीजन क्रिएट किया गया है। इसके अलावा सर अवेयरनेस करना, स्पेशल एप्स डेवलप करना, हेल्पलाइन, इस तरह का सर बहुत घटनाएं हैं। आखिरी में सर मैं ये बताना चाहता हूँ कि
हमारे जो राष्ट्रपिता ने ये कहा था कि जब महिला रात के 12 बजे रात को अकेले सड़कों पर चलेंगे तब हम मानेंगे कि हमारा देश संपूर्ण रूप से आज़ादी हो गया है। इसलिए सदन को मैं सरकार की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मुझे कोई आवश्यकता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि जो भी आपका कंसर्न है उसको हम एड्रेस करने का आपको मैंने आश्वासन भी दिया है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं कि हम लोग सब एक आवाज़ से अगर ये क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल 2018 अगर पास किया जाए तो देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा और अच्छा संदेश जाएगा। आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2018 पर चर्चा पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया। किरेन रिजिजू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब महिलाएं रात को 12 बजे भी अकेले घूम सकें। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनहित की किसी अहम चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।